فرق نہیں پڑتا کہ آپ صبح بیٹھ جائیں، شام تک آپ اعتراض کرتے رہیں اور بس یہ کہ کوئی آ جائے میرے ہاتھ میں اس کو ذلیل کروں یا اس کو نیچا کروں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جی تو میں نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، کافی دیر سے میں رکھ رہا ہوں، وہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی میں نے بتائیے۔ انہیں کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مرزا صاحب کے مخالف جتنے بھی علماء تھے، جی جتنے بھی عرب کے، ہندوستان کے جتنے بھی تھے، آپ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کوئی بھی ایک دلیل لے آئیں، تو میں اس کے مقابلے میں مرزا صاحب اکیلے کی 5 دلائل لے کے آؤں گا۔ یعنی کہ اگر کسی کو سچا خواب آیا ہے، کوئی وحی ہوئی ہے، کوئی الہام ہوا ہے، اگر آپ ایک لائیں گے لاکھوں مولویوں کی، تو میں مرزا صاحب کی 5 ہی لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا اس کو آپ قبول کریں، لیکن یہ کہ کافی عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، قبول نہیں کر رہا کوئی بھی۔ دوسری بات میں نے کہی کہ 1974 والی جو کاروائی تھی وہ ساری کی ساری 2 نمبر تھی، آپ اس کا دفاع کریں اور مرزا صاحب پر جو بھی آپ الزام لگائیں گے میں اس کا دفاع کروں گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو کہا، یہاں پہ بھی کہا، ٹویٹر بھی کہا، لیکن ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی بندہ بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا، تیار ہو رہا۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی جہاں پہ ہمیں جو خدا نظر آئے گا تو پھر ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے نا، جہاں پہ خدا کا نام و نشان ہی نہیں ہے، نہ کوئی یقین ہے، نہ کوئی ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کا۔ تو جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ادھر ہم چلے گئے۔ تو اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ خدا آپ کی طرف ہے، کوئی نشانہ دکھائیں گے تو ہم آپ کی طرف آ جائیں گے۔ جی دیکھیں ختم نبوت صاحب، یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ نشان ہے دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نشان ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تو تمام باتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی تک نہیں بنتا ہے میرے بھائی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسل پہ پریشانیاں آئی ہیں، جنگوں میں انہوں نے زخمیں کھائی ہیں۔ تو یہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے ساتھ نہیں تھا اللہ؟ ہاں یہ جی، تو ہاں میرے خیال میں آپ جو پوچھ رہے ہیں، تو اس طرح کا دعویٰ کوئی معذرت کے ساتھ ایسا آدمی کر سکتا ہے جو خام خواہ کا تقیہ کر رہا ہے، یا اب جھوٹ کا الفاظ استعمال کریں تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن اس طرح کا دعویٰ کوئی بھی اچھا انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، رہی دوسری بات کارروائی کے بارے میں۔ کارروائی کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ 2-4 مرتبہ آپ نے ہمارے وہ جاوید صاحب ہیں نا، وکیل صاحب، انہوں نے حامی بھری تھی، لیکن آپ تیار نہیں ہوئے تھے اور بات نہیں کی تھی۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، میں جاوید صاحب کو بلا لیتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، میرے بروڈ پہ کوئی آپ پر زیادتی نہیں ہوگا، اور جہاں بھی کوئی غلط بات آپ اگر کریں گے تو کرو، میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا۔ اگر ہماری طرف سے جاوید صاحب زیادتی کریں گے میں ان کو ٹوکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، زیادتی کرنے نہیں دوں گا۔ اگر ابھی بھی آپ تیار ہیں کارروائی پہ بات کرنے کے لیے تو میں ان کو بلا لیتا ہوں، انشاءاللہ بات طے کر لیتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ہو اس وقت بات کر لیتے ہیں۔ جی 2 ہی آدمی بات کریں گے، تیسرے کو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پیر صاحب، جاوید صاحب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، انگلینڈ والے آپ کہہ رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ہاں جی، دیکھیں وہ آپ کو شاید غلط فہمی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، میری طرف سے قبول ہے، اگر وہ آ جائیں کر سکتے ہیں اس کا دفاع تو میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا تھا میں نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات ہو گئی، دیکھیں میں نے کب کہا کہ کسی پر مصیبت نہیں آتی؟ جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کا بھی تعلق ہے، وہ ایک دلیل دیں گے، میں 5 دلائل رکھوں گا، وہ میرے دلائل کو رد کریں گے، میں ان کی دلیل کو رد کروں گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا تعلق کیا یقین بھی اللہ تعالیٰ پہ ثابت نہیں ہے مرزا صاحب کے مخالفین کے پاس، مولوی جو ہے اس کو کر کے میں بھی تو رکھوں گا نا، میں بھی تو رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ فرمایا، انہوں نے پہلے پیشگوئی کی اور 2 دن بعد وہ ایسا ہو گیا۔ اگر وہ ایک حوالہ پیش کریں گے میں 5 کروں گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دلیل بنائیں قرآن کریم میں کہ بت تو نہیں بولتے لیکن اللہ بولتا ہے، اور یہاں پہ دلیل یہ ہو کہ اب ہمارا اللہ بھی نہیں بولتا۔ سمجھے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے اوپن یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ ایک حوالہ آپ 5 لے کے آئیں گے، میں 25 لے کے آؤں گا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بھی خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کے ساتھ نظر آیا جو مولویان تھے مرزا صاحب کے مخالف، تو میں وہ قبول کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن جب خدا کا نام و نشان ہی نہیں ملتا، جہاں پہ ملتا ہے تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ ختم نبوت بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس طرح کا دعویٰ تو کوئی نہیں کرے گا کہ میں یہ نشانی پیش کروں گا، یہ نشانی پیش کروں گا۔ اس طرح کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا مسلمان۔ کیا نشانی پیش کرے گا بھئی؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مسلمان کو، علماء کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے سچائی کے لیے کوئی نشانی پیش کرو؟ ایسا تو ہے نہیں بھائی۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی تعلیم پر چلتے ہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ اللہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ نشانی دے گا تو سچا ہوگا۔ کوئی آ کے دعویٰ کرے اللہ میرے ساتھ ہے، میں کرتا ہوں دعویٰ اللہ میرے ساتھ ہے، کیسے آپ مجھے جٹلائیں گے؟ بتائیے، جی مجھے بتائیے۔ ہاں جی پیر صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نشانی دیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی دلیل ہو کہ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق تھا، ایک دلیل دے دیں نا، میں 5 دلائل دوں گا، میں رد کروں گا ان کا، وہ میرے رد کریں گے۔ دیکھیں جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب موازنہ ہی نہیں کرنا، اپنے اپنے دعوے پہ قائم رہنا، تو پھر دونوں آپ بھی رہیں میں بھی رہوں۔ لیکن اگر آپ نے سچائی جاننی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا، میں بھی پیش کروں گا، میں بھی تو ہوں نا، میں بھی تو کہہ رہا ہوں میں پیش کروں گا۔ آپ رد کرتے ہیں، کہنا یا جی تو بات ہی غلط ہے، اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں آپ کو پوری آزادی دے رہا ہوں، تو کیونکہ کیا ثبوت ہے، کیا کیونکہ آپ ثبوت ثابت کریں گے؟ کیا ثابت کریں گے؟ کیا دلیل دیں گے؟ میں وہ پھر دوں گا نا، پہلے کوئی قبول تو کرنے والا ہو۔ میں ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ چلو شروع کرتے ہاں ہیں۔ چلیں، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ اچھا، آپ خدا تعالیٰ کے تعلق میں، آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کی کیا دلیل لے کے آتے ہیں؟ آپ کو ایک دلیل آپ دے کو دیں، کیا دلیل چاہیے؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دکھا سکتے ہیں دنیا کو کہ میرا خدا کے تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہے، وہ دلیل دے دیں آپ۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے ہر قسم کی فراوانی دی ہے، بچے بھی ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور مجھے بھٹکنے نہیں دیتا، جھوٹ بولنے نہیں دیتا، کیونکہ میں کلام پڑھتا ہوں اللہ پاک کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پڑھتا ہوں۔ کوئی بھی ہو، میرا دشمن بھی نہ ہو، میری دشمنی ان سے صرف جو بات ہے وہی ہے، وہ دلی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہے، کوئی اختلاف ہے، وہ شرعی ہے۔ کبھی کسی کو قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کسی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں، کسی کو ذلیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جھوٹ بولنا امکانی حد تک بولتا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، گردن کٹ جائے، آج تک جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں، اور پونک پونک کے قدم رکھتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، اتنی ہی بات ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی چیز لے لی، کسی کو بیچ دیا، جب تک وہ آئے نہیں، پیسے نہیں دیے، یا ان کے پاس چینج نہیں تھا، کہا بعد میں دے دینا، جب تک اس کو دوں گا نہیں، چین نہیں آتا۔ کوئی چیز پڑا ہوا ملتا ہے، حیران ہو جاتا ہوں، کروں کیا؟ اس کو لے کے پھرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ۔ یہ تمام چیزیں تعلق ہے تب کر رہا ہوں، ورنہ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مل گیا، کھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جھوٹ بول لیا، اوٹ پٹا کی باتیں کر لی، اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ ہے میرا تعلق۔ جی اب آپ بتائیے کہ میں جی پیر جھوٹا ہوں ان صاحب، باتوں ہاں میں؟ جی ہاں جی پیر صاحب، یہاں پہ مغرب میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کا خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے، ملحد ہے، لیکن جی یہ چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نہیں نہیں، ان کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں، ان کی بچیاں ننگی گھوم رہی ہیں، جھوٹ وہ بھی بولتے ہیں وہ۔ نہیں بولتے جھوٹ۔ بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو، بدکاری، شراب نوشی، یہ تمام چیزیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ شائننگ کر گئے، مال دولت کما لیا، یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی۔ نہیں اپنا پیر تو صاحب وہ اچھا جھوٹ نہیں ٹھیک، مان بولتے، گئے، بہت چلے بہت آپ کی لاکھوں۔ بات مان گئے، آپ کی بات مان گئے، یہ تمام تعلق تو دوسروں کے ساتھ ہے، تو پھر آپ مرزا جی کے لیے کیسے وہ ثابت کریں گے؟ وہ بتائیے۔ ہاں یہ مزے کی بات ہے جو آپ نے اب کی ہے، ہاں کہ بھئی بتائیے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے تو بتا ہمارے دیا۔ پاس، ہاں جی چلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس دے کی آپ دیجیے۔ تحقیق کر لیں۔ جی آپ نے اسلامی اصول کی فلسفی جو کتاب ہے اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا کچھ بھی؟ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس کے بارے میں سنا آپ نے کچھ؟
नहीं, मैं ने नहीं सुना। हाँ जी, वो एक हिंदू आया था उनके पास, उसने कहा था कि मैं तमाम जो मज़ाहब है ना बड़े बड़े, जी उनका मैं एक मुवाज़ना करना चाहता हूँ, और एक चाहता हूँ कि हर कोई अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने दीन से, अपने अपनी किताब से 5 सवालात हैं उनके जवाबात दे। ठीक है, 5 सवाल उसने बताए, इस्लामी सोशियोग्राफी आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने उसको चैलेंज को कबूल किया। उन्होंने पहले इश्तिहार छपवा के पूरे लाहौर में इश्तिहार छपा और बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है। मैं सिर्फ एक दलील दे रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी दलाइल है। अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी, मजमून जो मैं लिखूंगा वो सबसे ज्यादा बेहतर और आला और अल्फा रहेगा। ठीक है, हिंदुओं ने भी अपने वो किताब गीता से जवाबात दिए, सिखों ने भी, मुसलमानों दूसरों ने भी दिए। मिर्जा साहब के मजमून जब आया तो उसके लिए 3 घंटे थे। ठीक है, पूरा हाल सिटी हॉल लाहौर का भरा हुआ, लोग दीवारों पे, दीवारों से बाहर। 3 घंटे लोगों ने कहा कि 3 घंटे गुजर गए, मजमून खत्म नहीं। इतना दिलचस्प है, इतना बेहतर है, इतना अच्छा है कि हमने मुकम्मल सुना है। 7 घंटों में वो मजमून पूरा हुआ, सुनाया गया। तो मिर्जा साहब ने पहले पेशगोई कर दी थी, और फिर अखबारों ने लिखा कि सबसे बेहतरीन ये मजमून रहा। अब इसको आप तहकीक कर लें, साबित कर लें। एक बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि जो मैं मजमून बताऊंगा, जो लिखूंगा, वो सबसे बेहतर रहेगा, और बाद में गवाहियां दी मुखालफी ने कि यही सबसे बेहतर है। ये है सबूत जिसको हर कोई देख सकता है। और मजमून जो है आज मेरा ख्याल है शायद 50 जुबानों में उसका तर्जुमा हो चुका है। जो उनके मुखालफिन के मज़ामीन थे वो आपको कहीं पे नामो निशान ही नहीं मिलता। तो एक बंदा पेशगोई करता है, वफात पाता है, वो मर जाता है, लोग पढ़ते हैं, लोग फिर जमात में दाखिल होते हैं वो किताब पढ़ के। तो उस वक्त भी सबूत थे और आज भी सबूत है, और जो उनके मुखालफिन के मज़ामीन थे नामो निशान ही कोई नहीं है। ये है जिसको आप चेक कर सकते हैं। मैं आपके सामने बतौर दलील सिर्फ मैं बहुत सारे पेश करता हूँ, सिर्फ एक ये पेश करता हूँ, तहकीक कर लें, उस मजमून को पढ़ लें। जी, दूसरे मज़ामीन थे उनको एक बात देखने ठीक में है। मिलेंगे नुक्से आपको। मिर्जे वाला। तो ये है। 1 मिनट भाई, क्रिस्टोफर भाई प्लीज, अल्लाह के लिए आप भाई हैं। देखिए ख़त्म नबूवत भाई, मुझे तो नहीं मालूम कि आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों का मतन यहाँ पर रखते, उनको हम देख लेते। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं भट्ट साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ ज़रा। हाँ ठीक है, आनंद नबी साहब को शायद मालूम देंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ये दावा तो मैंने भी कर दिया ना कि मुझे अल्लाह ने बताया है। कहाँ? कुरान मजीद में कि अल्लाह मोमिनों के साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं हर जगह कामयाब हूँ। और ये भी अल्लाह ने बताया है कि मैं तुम्हें जांचूंगा। अल्लाह जांचता भी है, परखता भी है। इम्तिहान कभी माल के नुक्स से, कभी जानों के नुक्स से, ये अल्लाह ने बताया। मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने बताया है। कहाँ? कुरान में, कहाँ? हदीस में। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात खास जो आप कर रहे हैं, आमन साहब आप जवाब दीजिए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितनी बात भट्ट साहब ने की है ना, वो मैंने सुन ली है। भट्ट साहब मेरे इसी मौजू पर मेरे साथ मुनाजरा कर लें कि मिर्ज़ा साहब ने ये इश्तिहार छपवाया था, ये बात ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ती चोरन और राड़ के, यानी उस मज़ाहब आलम कॉन्फ्रेंस की कमेटी में अपने मुरीदों को दाखिल करके, खलीफा रशीदुद्दीन वगैरह को दाखिल करके, उनके साथ मिल के बाहमी, जिसको बोलते हैं ना मिली भगत से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, और उसमें अपने मजमून के फर्स्ट आने का जो ऐलान किया, उसका ऐलान, वो ऐलान कोई भी बंदा कर सकता है। जब कमेटी में, इंतज़ामिया में आपके बंदे हों, सवालात आपकी मर्जी के डाले गए हों, तो ये दावा भी आप कर सकते हैं कि भाई मेरा मजमून फर्स्ट है। क्योंकि फैसला तो हम नहीं करना है ना, हमारी कमेटी नहीं करना है ना। ये जो मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर मज़ाहब आलम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी, वो मैं रोज़ यहाँ पे अपनी बराड़ पे मुनक्कद करता हूँ। जोसेफ मसीह मेरे साथ होता है, तारक चौहान मेरे साथ होता है, हफीज़ शेख मेरे साथ होता है, और कादियानी आगे लग के दौड़ रहे होते हैं। मेरा मजमून रोज़ फर्स्ट आता है। मिर्ज़ा साहब का तो एक दफ़ा आया था। इस पर मेरे साथ चाहें तो मुनाजरा कर लें। जो मैंने बात की है, जो मैंने दावा किया है, मैं इसका सबूत दूंगा, और भट्ट साहब इसको डिफेंड करेंगे कि नहीं मिर्ज़ा साहब का कोई मुरीद उस कमेटी में शामिल नहीं था और ये मिली भगत से नहीं हुआ था। जी भट्ट साहब। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है? खामोशी है दूसरी तरफ, सन्नाटे हैं। भट्ट साहब, आप
बात कीजिए आमिर नजीर साहब ने आपको हाँ जी पीर साहब देखें, ये जो चैलेंज है जो मैंने किया है, ये इन हजरत के सामने भी रखा था। इन्होंने 2 दिन बाद कह दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई हवाला, कोई सच्चा ख्वाब, किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है जो हजरत अब बोल रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात आपने कमेटी की कही, वो इंडियन जो हिंदू था वो मिर्जा साहब के पास आया था कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, वहाँ पे सलाह मशवरा हुआ सब। जो मैं गवाहियों की बात करूँ भी, वो अखबार जिनके गवाहियाँ हैं वो हमारे अखबार तो नहीं है, वो तो हिंदुओं के या दूसरों के अखबार हैं, उनके मैं आपको गवाहियाँ दे दूंगा। क्या वो अखबार कमेटी में बैठे हुए थे? फिर मैंने कहा कि मिर्जा साहब ने पहले बता दिया था, अब आज भी अगर सबूत लेना है तो आप जो उनके मुखालफिन के मज़ामीन थे उनको ढूंढ लाएं, ले आए, कहीं भी निशान मिलेगा आपको। तो जो मिर्जा साहब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि ये मजमून जो है ये सबसे आला रहेगा, और आज मैं सबूत ये देता हूँ कि वो सबसे आला मजमून है मौजूद, और इतनी ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हो चुका है। आप तो कोई निशान लेके आए, वो मजमून ले गए तो हम देख लेते हैं, आप अपने ले आए। आपके उलमा भी थे ना उधर, आपके उलमा को तो किसी ने रोका तो नहीं था, या आपको किसी ने रोका हुआ कि आप उस मजमून के तर्जुमे करें और पूरी दुनिया में फैलाएं? जो मजमून रहा, जो एक नबी ने लिखा, वो पूरी दुनिया में मिल रहा है आपको जुबानों में। आपका मजमून का नामो निशान ही नहीं है। तो जहाँ पे निशान मिला हमें, वहां पे हम बैठे हुए हैं। जब आपकी तरफ से निशान मिलेगा फिर हम गौर कर लेंगे आपकी तरफ आना कि नहीं आना। शुक्रिया। हाँ जी, जो मजमून मिर्ज़ा साहब ने पढ़ा, अगर आपके पास है 1 घंटे बाद टाइम रख लें, वो मजमून आप पढ़ के सुनाएं। जो शेख मोहम्मद सैन बटालवी ने पढ़ के सुनाया वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आज फिर फैसला कर लेते हैं। रही बात आपके तर्जुमों की, आप तर्जुमा करते फिरें, आपका वो नबी है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आपको तो चाहिए तर्जुमा करें, उनके मजमून का तर्जुमा करें, उनके कुर्ते को संभाल के रखें, उनके जूतों कपड़ों को संभाल करके। ये आपका ज़ाती मैटर, हमें इससे क्या लेना देना, आपने तर्जुमा किया हुआ है। लेकिन मैं आप भी सबूत दूंगा। दूसरा मेरा दावा कि शेख बटालवी को तकरीर करने से रोका गया, उनका टाइम खाने की कोशिश की गई, और मिर्ज़ा साहब के वो मुरीद, मिर्ज़ा साहब के हाथ पर बैत करने वाले वो मुरीद जो उस कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने शेख के मजमून के बयान करने में रुकावटें डाली। इसका भी मैं सबूत दूंगा। हाँ जी, माइक फ्री है। अपना पीर साहब, एक तो ये बात है कि ये हजरत इनकार कर चुके थे कि हमारे पास कोई हवाला नहीं है, मैंने मैदान में नहीं आना। ये बात, ये तो बिल्कुल अब इन्होंने उसका ये नहीं कहा कि मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि वो गवाह मौजूद है। दूसरी बात मैंने कहा कि मिर्जा साहब जब उन्होंने मामूर होने का दावा किया, या जब इल्हामात शाये किए, 1882 में उनकी जो उम्र थी तकरीबन 45 साल से ऊपर थी। ठीक है, 45 साल से ऊपर थी। मैंने इन्हें कहा कि आपको मैं चैलेंज करता हूं कि उस उम्र तक अगर किसी ने उनकी ज़ात से किसी किस्म का इतराज़ किया हो वो आप ले आए, अगर उनकी खूबियां लोगों ने बयान की हैं वो हवाले मैं ले आता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तो उनके सामने अपनी उम्र पेश कर। सूरा यूनुस आयत नंबर 16, तू कह दे कि मैं एक लंबा अरसा तुम्हें गुजार चुका हूँ, क्या तुम फिर भी अकल नहीं करते? तो अगर दावे से पहले वाली उम्र में कुछ नहीं मिलता तो फिर अल्लाह ताला कहता है फिर तुम्हारी अकलों का कसूर है, बंदा वही है जिसने 40 साल तुम्हें गुजार चुके हैं। तो ये मिर्जा साहब को मैंने ये चैलेंज अभी भी दिया हुआ है मैंने। इन्होंने आज तक कोई ऐसा हवाला नहीं लेके आया कि 1880 तक 82 तक उनकी ज़ात पर किसी किस्म को इतराज़ हुआ हो। अब ये इतराज़ कर रहे हैं, आप तो मुखालफिन है, आपको तो चाहिए कि आपने वो उनके ज़ात पे हमले करने हैं, तो वो आप जो दावे के बाद वाली उम्र है उस पर आप करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो आप जो है मजमून है, अगर उन आपके किसी आलम ने किसी किस्म की पेशगोई की थी, खुदा उनके साथ भी थो ना, मिर्जा साहब के साथ तो नहीं था। जो मैंने गवाहियां दी हैं वो गवाहियां अपने हमारे घर से नहीं दे रहा, आपके घर से दे रहा हूँ। अखबारें आप लोगों की हैं, हमारी नहीं है जिनकी गवाहियां मौजूद हैं। तो जब गवाहियां मौजूद हैं, जब उसके तर्जमे सारी दुनिया में फैला हुआ मजमून वो मौजूद है, तो फिर मैं आपको और क्या गवाही दूँ? और आप कह चुके हैं कि भाई मैंने आपके इस मुकाबले में नहीं आना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी आपके पास है, आप एक ले आए, मैं 5 लाऊंगा। ये है असल में, ताकि लोगों को पता चले कि खुदा ताला कोई नजर आता है कि नहीं नजर आता आपकी तरफ। शुक्रिया। अच्छा, ये जो दावा कर रहे हैं ना कि मैंने इनको कहा था और ये इनकार कर गए थे, वो है इनका वो इल्हामात वाला दावा और पेशगोइयों वाला दावा। हमारे उलमा ने ना ये दावा किया है कि हमारे ऊपर इल्हामात नाजल होते हैं और हम कोई गैब की पेशगोइयाँ कर सकते हैं और उनके करने के बाद फिर उनको पंचर लगा लगा के सीधा पतरा करके लोगों को दिखा सकते हैं। ना हम इसमें इस मैदान में आपको चैलेंज करते हैं, क्योंकि मुफ्तरी से बड़ा काफर, खुद मिर्ज़ा साहब का ये दावा है कि मुफ्तरी से बड़ा काफर और कोई नहीं होता। जो बंदा इफ्तरा करता है
अल्लाह पर झूठ बांधता है वो सबसे बड़ा काफर है। तो हम तो इफ्तरा के कायल ही नहीं है ना। आपके पास पेशगोइयाँ, आपके पास दावे हैं, हमारा तो ये चैलेंज ही नहीं है। ये इसका मैंने इनकार किया था कि भाई हमारे किसी आलम दीन ने ना नबूवत का दावा किया, ना पेशगोइयों का चैलेंज किया, ना उनके पास गैब की खबरें आती थी, ना वो झूठी खबरें देकर उनको फिर बाद में पंचर लगाते थे। हम तो ऐसे मुर्शिद को, ये मैं मिर्जा साहब के अल्फाज कोट करने लगा हूँ, हम तो ऐसे मुर्शिद को कुत्तों से भी बदतर ख्याल करते हैं, कुत्तों से भी बदतर, जो अपने पास से पेशगोइयां घड़ के बयान करता है, फिर उनके पूरा करने के लिए वो जतन करता है, उन पेशगोइयों को पूरा करने के लिए फिर वो हाथ से कोशिशें करता है। हम तो ऐसे मुर्शिद को और उसके मुरीदों को कुत्तों से भी बदतर ख्याल करते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई ना पेशगोई है, ना इल्हाम है, ना कोई इस तरह का दावा है हमारा। अब वो जो जलसा मज़ाहब आलम, वो तो मेरे ख्याल बढ़ गया, वो तो मैंने साबित कर दिया बगैर दलील दिए ही कि जलसा मज़ाहब आलम मिली भगत से मिर्ज़ा साहब ने अपने मुरीदों को उस कमेटी में शामिल करके लोगों को धोखा दिया कि मेरा मजमून फर्स्ट आएगा। मजमून तो आपका ही फर्स्ट आना है, जब मुरीद ही आपके उसमें कमेटी में शामिल हैं और कुत्ती जिस तरह कहते हैं चोरों से मिली हुई है, तो वहाँ तो मजमून तो आपका ही फर्स्ट आना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस मजमून में मिर्ज़ा साहब ने कौन सा ऐसा तीर मारा था, मैं कहता हूँ वो मजमून ले आए, मजमून पढ़ के सुनाए। मैं शेख बटालवी का मजमून पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी आपकी खामोशी बता रही है कि आपके मिर्ज़ा साहब के जो सहाबा थे उन्होंने शेख बटालवी को मजमून अपना पढ़ने से रोका। आपकी खामोशी बता रही है, वरना अगर आपने बेईमानी ना की होती, शेख बटालवी का मजमून पढ़ने से उनको ना रोका होता, तो आप कहते हैं अमर झूठ बोल रहे हो, मिर्ज़ा साहब के किसी मुरीद ने नहीं रास्ते में रुकावट डाली, करो। लेकिन आपको भी पता है कि ये हेरा फेरी के जरिए से एक पेश किया गया मजमून और उसमें वो झूठी पेशगोई की गई कि भाई मेरा मजमून फर्स्ट आएगा। फर्स्ट तो आना ही है, जिस तरह मैंने कहा है। तो ये तो अब इस मौजू पर तो आप बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे इल्हामात पर, पेशगोइयों पर। कहेंगे कि भाई मैंने तो अमर नज़ीर को कहा था कि अपने इल्हामात और पेशगोई, भाई हमने तो कहा है कि हम तो ऐसे मुर्शिद और मुरीद को कुत्तों से बदतर ख्याल, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इस बात की। एक आखिरी सवाल कि जी कहते हैं कि वो मिर्ज़ा साहब के ऊपर एतराज़, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, ये है दावा भट्ट साहब का। लो जी भट्ट साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1880-82 का इल्ज़ाम दिखाता हूँ, दिखाता भी उस बंदे का हूँ जिसने बाद में मिर्ज़ा साहब को बेटी दी है, जिसने मिर्ज़ा साहब के साथ अपनी बेटी ब्याई है। मिर्ज़ा मीर नासिर नवाब का एतराज़ पेश करता हूँ, मिर्ज़ा साहब के किरदार पर धब्बा पेश करता हूँ। नज़म लिखी है वो मैंने परसों पढ़ के सुनाई है, जो मिर्ज़ा साहब को मुखातब करके उसने नज़म लिखी है कि आजकल जो पीर बने हुए, तब उसने बेटी नहीं दी, तब रिश्ता नहीं कायम हुआ था, तब वो मिर्ज़ा साहब से बदजन था और वो मिर्ज़ा साहब के बारे में नज़म लिखकर बता रहा था कि ये शिकम प्रस्त आदमी, ये ऐसा ही ढोंगी पीर है जो लोगों को धोखा देता है, लोगों से माल बटोरता है किताब के नाम पर और फिर वो खा के डकार भी नहीं लेता। चलो जी, एतराज़ भी घर का पेश करते हैं। हम अगर अपने घर का एतराज़ पेश करेंगे, आप कहेंगे आप तो मुखालिफ हो, आपने तो एतराज़ करना ही करना है। मैं उसका एतराज़ पेश करता हूँ जिसने मिर्ज़ा साहब को बाद में अपनी बेटी निकाह में दी, यानी मीर नासिर नवाब का एतराज़ पेश करते हैं। वो कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने किताब के नाम पर लोगों का माल हड़प किया है। जी भट्ट साहब आए मैदान में। जी, जिसका दिमाग कुत्ता खा गया हो वो इसी तरह की बातें करेगा, बहकी। आपने इश्तियाल अंगेज़ी करनी है तो फिर इश्तियाल अंगेज़ी सुने भी। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं अपने बंदों की दुआएं सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। कुरान करीम में ये वादा कर रहा है अल्लाह ताला। आपने हार मान चुके हैं कि किसी किस्म का कोई सच्चा ख्वाब भी आपके मौलवियों के पास नहीं है। कोई इज्तिमाई दुआ उन्होंने की हो कि हम आए इकट्ठे हों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस नबी को या इस बंदे को जो नबूवत का दावा कर रहा है, इसको बदतरीन 1 साल के अंदर सजा सुना या कोई सजा दे। ये हमारे मुतल्लिक दिन रात पेशगोइयां करता है। कोई हमें भी तो अल्लाह ताला, तुम मिस्र के बादशाह को सच्ची ख्वाब दिखाई थी, वो तो तेरा शायद मानने वाला था, नहीं मानने वाला था, लेकिन हम तो मानने वाले हैं, हम तो दिन रात तेरी इबादत करते हैं। कोई हमें भी रहनुमाई हमारी कर, कुछ दिखा। आपने अब कबूल कर लिया है कि हमारे पास ऐसी
कोई भी चीज है। यही तो मैं कह रहा था कि आपके मौलवी के पास खुदा ताला पर ईमान ही साबित नहीं है, ना खुदा ताला का किसी किस्म का ताल्लुक साबित है। मैं लाखों बंदों का आपको कह रहा हूँ कि आप पूरे लाखों के मौलवी ले लें और मैं मिर्जा साहब का एक बंदे के 5 हवाले लेके आऊंगा। तो अब आपने कबूल कर लिया कि हमारे पास कोई भी नहीं। अब मैं जाता हूँ आपके जो इस्लामी सूल की फलासी, मैंने कह रहा हूँ कि आपके घर से गवाहियां मौजूद है। आप चैलेंज करेंगे हमारे घर से गवाहियां मौजूद नहीं, आपके घर से गवाहियां हमने दिलवाई थी, आपके जो अखबारात हैं उनको हमने कहा था लिखो, ठीक है। तो आपके पास उधर भी शिकस्त है, इधर भी शिकस्त है। अब आपके पास रह गया जी मेरे वो मिर्जा नासिर साहब का, वो आप हवाला पेश करें, हम देखते हैं, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा भाई, वो जो है ना वीडियो, अबू बकर मीर भाई, वो वीडियो प्ले करके ना इनको थोड़ी सी नज़म सुना देना जो मैंने परसों पढ़ के सुनाई है, बाबर मेहर के वो वीडियो उसके चैनल पर पड़ी हुई है, वो नज़म तो आपको भी सुना देते हैं। रही बात ये, अब ये कहते हैं दुआओं पे आ गए हैं, बाकी तो काम ख़त्म हो गए हैं, पेश गोइयाँ तो ख़त्म हो गई हैं। अब कहते हैं दुआएं भी नहीं करते थे। हाँ, दुआ करते थे, लेकिन माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। वो बंदे का काम दुआ मांगना होता है। अल्लाह गनी है, हम मोहताज हैं, हमारा काम है उसके आगे झोली फैला के दुआ करना। लेकिन इसके बारे में ये दावा करना कि हमारी ही दुआ कबूल होगी और ऐसा ही होगा, इसका दावा हमारा नहीं है। ये कोई मुफ्तरी दावा कर सकता है, क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे अल्लाह ताला ने ये खबर दी है और अब ऐसा होगा और वैसा होगा। वो किसी के मतलब कोई ऐसी पेशगोई शाया नहीं कर सकता, मुफ्तरी कर सकता है, करता है। फिर कुत्तों की तरह, बकौल मिर्जा साहब के, कुत्तों की तरह उस मुर्शद और मुरीद को हम समझते हैं जो पेशगोई करता है, फिर उसको पूरा करने के लिए जतन करता है। फिर पता है क्या क्या होता है। लेखराम के बारे में मिर्जा साहब ने पेशगोई की थी, वो कत्ल हो गया। मिर्जा साहब के घर की तलाशी ली थी पुलिस ने आके कि मिर्जा साहब ने उसको कत्ल करवाया है। सारे मोहल्ले में, सारे गांव में, सारे जिले गुरदासपुर में ये बात मशहूर थी कि मिर्जा साहब ने उसको कत्ल करवाया। मैं नहीं कहता करवाया या नहीं करवाया, मैं कहता हूँ मिर्जा साहब के घर की तलाशी क्यों ली गई। अगर ये एक नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी होता, इसके ऊपर पुलिस को क्यों शक, पुलिस की नजर में मुश्तबे क्यों बना ये बंदा। तो बहरहाल ये पेशगोइयाँ किया करते थे। इन्होंने मोहम्मदी बेगम के बारे में पेशगोई की और उसके लिए मिर्जा बशीर अहमद एम ए कहते हैं सीरत महदी में कि उनके मामू को एक दफा पैसे देने के लिए तैयार हो गए। मामदीन को, मामदीन जो मोहम्मदी बेगम का मामू था, उसको पैसे देने के लिए तैयार बैठे थे कि रिश्ता हो जाए, पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इस तरह की पेशगोइयाँ करके भाई अपने बाद में उसको हाथों से पूरा करना, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। हमारे आप जीते, ये तो आपका ही मैदान है। हम तो जब दावा ही नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती हमें कहते हैं दावा करो दावा करो। क्यों दावा करें, झूठ बोलें तो आए उस बात पर फैसला कर लेते हैं जो आपने चैलेंज किया है कि कुरान ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, इस पे फैसला कर लेते हैं। मिर्जा साहब के घर की गवाही आपको पेश करने लगे हैं। अगर अबू बकर मीर भाई वो वीडियो प्ले कर देते हैं तो आप वो सुन लें कि मीर नासिर नवाब ने कैसी बना के मंजी ठोकी है मिर्जा साहब की, कि किताब की अशात के बहाने, तसनीफ के बहाने लोगों से पेशगी पैसे लेना, ये आजकल के धोखेबाज, फ्रॉडी और नुसरबाजों, ठगों का काम है कि पैसे लेते हैं फिर हड़प कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। ये है आपके घर की गवाही जनाब, इसको पढ़ें और सर धुने। जी अब मेरी बारी है। मैं सुन लें भट्ट साहब, मुझे चला दें हवाला वीडियो। दे दे। नहीं मुझे हवाला दे दे, मैं देखूंगा ना, फिर आपसे बात करता हूँ। मैं जा नहीं रहा, यानी कि मैं इस हवाले पे बात करूंगा आपसे। मुझे हवाला भेज दें, पर्सनल में भेज दें या यहाँ पे लगा दें, मैं वो मसला नहीं। सुन्ना में 13वीं जिल्द में उसी दौर में छपी है। 1891 में छपी। एक मिनट, मेरा जवाब दे दें, फिर मुझे दे दें, ठीक है। दोबारा फिर मैं वही कहूँगा जो पहले कह चुका हूँ कि जिसका दिमाग कुत्ते ने खा लिया वो इस तरह की बहकी बातें करेगा। अब बातें हैं पहले इस्लामी सूल के फासले पे। वो मैंने कहा कि आपके घर से गवाहियाँ मौजूद हैं कि वो मजमून सबसे बेहतर रहा था। एक पेशगोई मौजूद है, एक आपकी गवाही मौजूद है आपके घर की। अब उनको हमने पैसे दे के आपके घर से गवाहियाँ दिलवाई थी, वो तो आप उस तरह बात नहीं कर रहे कि जब गवाहियाँ मौजूद हैं तो क्या कहेंगे। फिर जो है मैंने कहा कि वो मजमून पूरी दुनिया में है। अब एक शख्स जो झूठा हो उसको कहाँ से पता चलेगा कि ये गवाहियाँ लोग फिर देंगे, फिर अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम करेगा कि 150 साल मेरे बाद ये मजमून 50
زبانوں میں تقریباً ترجمہ ہوگا, لوگ پھر اس کو پڑھ کے اسلام کو قبول کریں گے. ایک تو یہ بات مضمون کے حوالے سے. دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ او بھائی آپ کے پاس خدا ہے ہی نہیں ہے, آپ دعویٰ کیا کریں گے؟ جس کے پاس خدا ہے اگر آپ ایک کریں گے میں 5 ہی کروں گا, آپ اس کو رد کرنا ہے. اب آپ میں ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ آپ کے پاس پتہ ہے کہ خدا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس قرآن ہو اور خدا نہ ہو. اور بھائی جس کے پاس قرآن ہوگا خدا بھی وہاں سے ملے گا. آپ کہتے ہیں قرآن تو ہے, خدا کا ہم سے نہ پوچھو, خدا کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی سچا جو شہد کی مکھی تھی, کیا وہ نبی تھی؟ وہی تو حضرت مریم پہ آئی, موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی ان کی ماں پہ آئی, شہر کی مکھی پہ آئی, مصر کے بادشاہ کو سچا خواب ہوا. اللہ تعالیٰ تو بار بار مثالیں بیان کر رہا ہے. پھر آپ نے کہا جی مرزا صاحب کو تو وہ لکھ رام کے بارے میں آپ نے بات کی کہ بھائی انبیاء پر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن کے گورنر نے سزا سنائی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے سزا سنائی تھی, وہ 12-13 سال جیل میں رہے. تو یہ باتیں قرآن کی جو ہے وہ بار بار اصحاب کہف کی پوری صورت موجود ہے کہ ان کو وہاں پہ روم میں پناہ نہیں تھی, ان کو تنگ کیا جاتا تھا, ان پہ قانونی پابندیاں تھیں, وہ غاروں میں رہ کے انہوں نے اپنا عقیدہ بچایا ہے. تو پورا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں نے کبھی کسی پر ان کے دین کی وجہ سے ظلم نہیں کیا. ایک واقعہ بھی نہیں قرآن کریم میں نبیوں کے دشمنوں نے نبیوں کے ماننے والوں پر ظلم کیا. اب آپ تاریخ دیکھ لیں 150 سال, اپنی تاریخ دیکھ لیں اور ہماری تاریخ دیکھ لیں. ہمیں صبر کا حکم ہے, آپ نے ظلم کرنا ہے جیسے اصحاب کہف پہ کیا جاتا تھا, جیسے انبیاء کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کیا جاتا تھا. آپ کی قسمت میں یہی رہے گا, اسی لیے اللہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صالح بندے ہوں اللہ آپ سے نہ ملے؟ تو آپ خود اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں. اگر قبول کرنا ہے چیلنج, میں بھی ادھر ہوں. ہاں جو آپ نے حوالہ کہا ہے وہ بھیج دیں, مجھے بتا دیں, میں پڑھوں گا. کل پرسوں میں اسی براڈ پہ بات کر لوں گا اس پہ. شکریہ. بٹ صاحب حوالے تو آپ پہلے بھی پچھلا بھی تو پہلے بھی آپ لے کر گئے تھے, وہ ابھی آپ نے چکائے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ حوالہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ابو بکر میر بھائی میری اس گفتگو کے بعد وہ پلے کر کے سنا دیتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنے مرضی پنچر لگانے ہیں لگا لیں. نہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی اس طرح کا پرچہ تھا کہ انہوں نے چوری چھپے کسی کے ساتھ واردات کی ہے, اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس طرح کا. قرآن نے ان کی گواہی دی ہے, یوسف علیہ السلام کی معصومیت کی تو قرآن نے گواہی دی ہے. آپ کے مرزا صاحب کو تو تفتیشی طور پر چیک کر کے انٹیروگیٹ کر کے انہوں نے دیکھا بھی چھری ان کے گھر سے نہیں ملی, تو اگر کوئی بندہ بھیج کے انہوں نے مروا دیا ہے لیکرام کو, تو اب پتہ تو نہیں, آپ کہہ تو نہیں سکتے جب تک وہ بندہ نہ ملے. بندہ نہیں ملا, مرزا صاحب بچ گئے. اگر وہ ملزم پکڑا جاتا یا چھری گھر سے برآمد ہو جاتی تو انہوں ٹھا ہو جانی سی. لیکن بہرحال اس طرح کے الزامات جو جھوٹے انبیاء پر لگائے گئے, ان کو اس طرح کا اس بندے کے اوپر لگنے والے وہ الزامات جو بالکل معاشرے کی نظر میں بھی اس طرح کے تھے کہ جب عبداللہ آتم کے بارے میں مرزا صاحب نے پیشگوئی کی نا, تو عبداللہ آتم امرتسر, فیروز پور, لدھیانہ دائیں بائیں گھومتا رہا. تو بعد میں آگے اس نے کہا مجھے اسلام کی تو جو حیبت تھی میرے پر طاری نہیں ہوئی, آپ کے خونی فرشتوں کی حیبت مجھ پہ طاری تھی کہ آپ کے خونی فرشتے نا میری آ کے جان لے لیں. یعنی یہ وہ ٹانٹ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جو چھڑیے ہیں نا, جو بدماش آپ نے رکھے ہوئے ہیں کن ٹوٹے, ان کا مجھے ڈر تھا کہ کوئی بندہ مجھے آ کے قتل کر دے گا اور مرزا صاحب کی پیشگوئی سچی کرنے کے لیے یہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں گے. پوری سوسائٹی میں وہ بندہ اس طرح کی کرمنل مینٹیلٹی کا بندہ تھا. میں نے کہا کہ چلو وہ تو عبداللہ آتم تو مذہبی مخالفت تھی نا, پولیس کے ساتھ کوئی مذہبی مخالفت تو نہیں نہ ہوتی. پولیس نے گھر میں ریڈ کیوں کیا؟ اگر پولیس کی نظر میں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا, مشکوک نہیں تھا. کبھی دیکھا ہے پاکستان میں کئی صوفی بستے ہیں, کئی مولوی بستے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں گھروں گھر, کبھی دیکھا کسی کے گھر پولیس آئی ہے؟ پولیس اسی کے گھر کی جا کے تلاشی لیتی ہے جو معاشرے میں مشکوک فرد ہوتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے. تو دھیان رکھیں, اس کے گھر کی تلاشی لے کے چیک کریں, ہو سکتا ہے وہ چھری ادھر سے مل جائے جس چھری سے لے کر ہم قتل ہوا ہے. تو اس کو اٹھا کے سچے نبیوں پر لگنے والے ان بہتانات کے ساتھ جوڑنا, خدا کا خوف آپ لوگوں کو نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ نبیوں پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں. بھائی
अगर ममासलत साबित कर देना, वो कहा करता था मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी कि ममासलत साबित कर देने से बरियत साबित हो जाती है। अगर बंदा ये साबित कर दे कि जो इल्ज़ाम आपने हमारे ऊपर कहा है ये इल्ज़ाम फलां पर भी लगा था, ठीक है मान लिया 302 का पर्चा मेरे पर भी हुआ था, अजीम भट्ट साहब पर भी हुआ था, क्या अगर अजीम भट्ट साहब बेकसूर है तो मैं भी बेकसूर हूं? अगर अजीम भट्ट साहब बरी हो चुके हैं 302 के पर्चे से, ममासलत साबित कर देने से बंदा बरी साबित हो जाता है, बेकसूर साबित हो जाता है। यानी इस तरह अगर कोई बंदा आके, कोई औरत, कोई लड़की इनकी आके कह दे कि मैं कुंवारी हूं, हमला हो गई हूं, तो कौन सा मेरे पर इल्जाम लगा? ये इल्जाम तो मरियम सिद्दीका पर भी लगा था, बरी हो जाएगी औरत, वो लड़की बेकसूर साबित हो जाएगी। कौन सी ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आप इल्जामात की ममासलत साबित करते जाएं तो हम बरी होते जाएंगे? अल्लाह से डर जाएं, ये झूठ छोड़ दें। मिर्जा साहब की जो जिंदगी है वो सारी दागदार है, 1880 से पहले की भी दागदार है, बाद वाली भी दागदार है। इसी बात पर शेख बटालवी के साथ उनका इख्तलाफ हुआ था कि पैसे आपने लोगों के खाए हैं किताबों के, और आप गालियां देते हैं लोगों को, गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये 3 बातें थी। और तीसरा उन्होंने कहा था कि पेशगोई ना साबित शाया करना है। आप पेशगोई शाया करेंगे, अगर कोई बच्चा हुआ या होके मर गया तो साडा रहना कख नहीं, तो गुमना कख नहीं, तो साडे हाल ते रहम करो। ये 3 बातें थी 1884 के शेख बटालवी के और मिर्जा साहब के खतूत निकाल के देख लें। इन 3 बातों से इख्तलाफ हुआ था ना, यही इख्तलाफ मैं आपके घर से पेश करने लगा हूँ, क्योंकि शेख बटालवी की बात तो आपने माननी नहीं है, वो तो है दुश्मन आपका, वो तो है अव्वलुल मुकफ्फरीन। मिर्जा साहब कहते थे अव्वलुल मुकफ्फरीन है। तो मैं आज नासिर नवाब साहब का हवाला पेश करता हूँ, वो अबू बकर मीर भाई प्ले कर देते हैं। ये आपके मिर्जा साहब की दावे से पहले की जिंदगी है, जब मिर्जा साहब ने बराइन अहमदिया लिखी थी और लोगों से पैसा लिया था और वो पैसा हड़प कर दिया था। ये मीर नासिर नवाब का एतराज है। मैं वो ऑडियो प्ले करके आपको सुना देता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अब बात वहीं पे आ जाती है कि जब किसी का दिमाग कुत्ते ने खा लिया, वो ये समझता है कि हम मिसाल देने से, अगर मैं लतीफ़ा की मिसाल देता हूँ तो कोई बेकसूर नहीं हो जाता, लेकिन वो खुद समझता है कि मैं यहाँ पे इल्ज़ाम लगाऊंगा तो कोई कसूरवार हो जाएगा। अदालत वहाँ पे मौजूद थी, उस वक्त हर इख्तलाफ मौजूद थे, गवाहान मौजूद थे, इल्ज़ाम लगाने वाले मौजूद थे। वो साबित ना हुआ तो एक पागल इंसान जिसका दिमाग कुत्ते ने खाया हुआ है, वो कहता है यहाँ पे मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा तो वो कसूरवार हो जाएंगे, वो मुल्ज़म हो जाएंगे, उन्होंने जुर्म किया ही किया, नौज़ बिल्लाह। अब बात यहाँ पे आप पीर साहब देख लें कि इस्लामी उसूल की फिलासफी वाला जो मैंने रखा था पहली बात पेश गोई, वो अब इस तरफ नहीं आ रहे क्योंकि इनकी घर से गवाहियां मौजूद है। और वो सच्ची बात थी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला उन्होंने कहा था तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर वो शाया की पेश हुई। आपके पास मौलवी के पास अल्लाह ताला का सिरे से नामो निशानी नहीं है। फिर मैंने कहा पूरा कुरान देख ले, कुरान में कभी भी किसी नबी के मानने वाले ने किसी दूसरे पर उसके अकीदे की वजह से जुल्म नहीं किया, कभी भी नहीं किया, एक मिसाल भी नहीं मिलेगी। हाँ, नबियों के दुश्मनों ने नबियों के मानने वालों पर किया है, तो हमने तो भाई आप पर कोई जुल्म किया। तो जब से पाकिस्तान बना है ताकत आपके पास है, कानून आपके पास, आइन आपके पास, घरों को आग आप लगाते हैं, कत्ल आप करते हैं, मुर्दा भाइयों का गोश्त आप खाते हैं, दिफा का हक ना दे के। ये है आपकी सूरत जो कुरान से पेश होती है। अब मुबारक हो आपको कि ये पीर साहब ने 1974 की कार्रवाई पे चैलेंज कबूल किया हुआ है, कि कर लिया है कि जवेद साहब आएंगे। वो कह रहे हैं कि जवेद साहब ने चैलेंज कबूल किया था, मैंने कहा कि नहीं किया। वो कहते हैं वो जवेद साहब बात करेंगे। आपने जो बगावत की है तमाम जमा ने मिलकर कुरान और रिसालत के खिलाफ, वो अब यहाँ पे मैं पेश करूंगा और देखता हूँ कोई माई का लाल उसको कैसे दिवा करता है। शुक्रिया। अब आप मुझे हवाला दे दें, मैं उसको पढ़ के हवाला फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आपने तो जाना है तो जाएं बेशक, लेकिन जो 74 की कार्रवाई वाली बात है वो मुझे नहीं पता कि पीर अस्कानी भाई ने कौन सा चैलेंज कबूल किया है। वो तो चैलेंज हम एक अरसा दराज से कबूल करके बैठे हुए हैं। कोई बंदा है जो 74 की कार्रवाई पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो? वही कार्रवाई है, उधर ही छपी हुई है, उसी पे बात कर लेते हैं। लाएं जिसने बात करनी है, मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, पीर साहब मेरी जवेद साहब के साथ करवाएंगे, वो वकील है, यहाँ भी होगी। पीर साहब उनसे बात करके मुझे टाइम बता दें। ठीक है, नहीं राजा साहब करें या मैं करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बंदा ही चाहिए ना, सिर्फ राजा साहब से करना, मेरे साथ एक चैलेंज आपको दिया हुआ है, उस वहाँ पे आपने कहा जी नहीं मैं हमारे पास कोई खुदा का निशान नहीं है, कोई इल्हाम, कोई सच्चा ख्वाब कुछ नहीं है, तो आप तो वहाँ से। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज बच गया है कि अगर आपके मौलवियों ने कोई इफ्तरा किया है तो पेश करो, तो मैं कह रहा हूँ नहीं किया, और कोई मेरे लिए चैलेंज नहीं है।
खुदा के निशान को इस तरह कह रहे हैं आप? झूठे दावे वही करने, बात झूठी है, पेशगोइयां करनी इफ्तराई होता है, और क्या होता है? दिमाग नहीं होगा तो इस तरह की बातें होंगी। चले पीर साहब, ये ऐसे ही बदमजगी हो रही है, आप मुझे मैसेज भेज दें जब वो उनकी बात तय हो जाए, आपकी टाइम पे हो जाए, दिन हो जाए, मुझे मैसेज भेज दें, ठीक है? या यहाँ पे मुझे किसी वक्त बुला लें तो मैं आपसे एक सवाल का जवाब हाँ जी। देंगे अजीम भट्ट साहब? नहीं, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं, बात हो गई जो नहीं, होनी एक थी सबके सामने हो गई। कुरान पाक की एक आयत का जवाब चाहिए था आपसे। नहीं, मैं इतना बड़ा आलम नहीं हूँ कि मैं हर आयत का जवाब दे सकूं। नहीं, हर आयत नहीं, आप उस आयत को पहचानते हैं। आयत भी मैं पढ़ूंगा, आपने सिर्फ तर्जुमा करना है। नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तर्जुमा आप लगाएंगे सामने से, मैं पढ़ लूँ, आप आयत बताएं। हाँ जी। सूरह अज़ाब की आयत 40, उसमें बात बहुत हो चुकी है, अब दोबारा बात नहीं। हाँ जी, मुझे हाँ जी, मैं तो नया आया हूँ, एक आयत का तर्जुमा कर दे, मेहरबानी कर दे प्लीज। हाँ जी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसका तर्जुमा कर दे। इसका मैंने बहुत दफा तर्जुमा किया हुआ है। एक दफा आखिरी दफा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन अल्लाह का रसूल और खातमुन नबीय्यीन। नहीं नबियों की मोहर है, नबियों को खत्म करने वाला है। अगर आपने और तर्जुमा चाहते हैं बताएं। नहीं, दोनों में से एक करे ना, या तो मोर करे यार, या खत्म करने वाला करे। और नहीं, जब दोनों ही ठीक है तो दोनों ही मैं कर लूंगा। नहीं, एक कर देना नहीं, एक। अब ठीक है, कर दिया ना मैंने, तर्जुमा चाहिए था आपको, दे दिया आपको, ठीक है? बहस मैंने आपने नहीं की आपके साथ। दोनों में से कौन सा वाला मैं नहीं, कबूल करूं? बस ठीक है, ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दोनों में से एक कर दें प्लीज भाई। दोनों ठीक है। शेख साहब का पाँव यूं भी है और यूं भी है, दोनों ही ठीक है। अबू बकर मीर भाई प्ले करें, वीडियो सुन लें भट्ट साहब नीचे बैठ। आमिर भाई एक ही हो गया है, तर्जुमा दो हो गए हैं, दो तर्जुमे हो गए ने। और जिन्नू मैं ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਜੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਜੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਉਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। कमाल हो गया। अबू बकर मीर भाई करनी है वीडियो प्ले, मैं म्यूट कर रहा हूँ। बस वो ज्यादा वो हिस्सा जिथे किताब की तसनीर का उन्हें आख्या ना, पेशगी लैके ते अगों गड़ोम करदे ने पैसे, तसनीर का उन्हें आख्या ना, धोखेबाज पेशगी लैके ते अगों गड़ोम करदे ने पैसे, धोखेबाज ठग ते नौसरबाज। मैं म्यूट लो बंद करो, फिर मैं प्ले करा। मसनवी दर हालात मक्कारी अहले जमाना, यानी जमाने वालियां दी मक्कारी दे बारे जेड़े मसनवी लिखी उन्हें उन्होंने ना दिता है। बाद अजी ये अर्ज है, ए मुस्लिमी, आज दुनिया में कहीं तकवा नहीं हैं, दगा में आजकल सरगर्म लोग, सैकड़ों दुनिया में अब फैले हैं रोग, हैं दवाओं के किसी जा इश्तिहार, कह के गुल लोगों को देते हैं ये खार, यानी फूल का बताते हैं और देते हैं कांटे। आगे सुने, शहद कहते हैं मगर देते हैं, शहद कहते हैं मगर देते हैं, ये बम है शायद। जाहलों को रात दिन देते हैं दम, जाहिरी और बातनी दुकानदार खल्क को करते हैं धोखे से शिकार। कौन मुखातब है इसका? जोसेफ साहब कौन मुखातब है? किसके बारे में लिख रहे हैं? मीर नासिर नवाब? ये मिर्जा नासिर नवाब साहब हो सकता है। मिर्जा नासिर नवाब तो लिख रहा है ना, किसके बारे में लिख रहा है? अच्छा, ये तो मिर्जा साहब के बारे में लिखा। हाँ, ये उस जमाने में मिर्जा कादियानी के बारे में उसने लिखा था, जब वो मिर्जा कादियानी के खिलाफ था, मीर नासिर नवाब, और शेख बटालवी उसके हमायती थे। बात समझ गए हैं? ये 1880-82 की नज़म है। पता है वो भी चेक कराते होंगे सर, फिर तो ये शारे शारे में मीर नासिर नवाब मिर्जा कादियानी की
یہ بات کر رہے ہیں. خلق کو کرتے ہیں دھوکے سے شکار. ہاں ظاہری اور باطنی دکاندار خلق کو کرتے ہیں دھوکے سے شکار. حافظ و حاجی بہت پھرتے یہاں حال ہے جن کا زمانے پر عیاں. قبر کا کوئی مجاور ہے بنا ہے کوئی زانڑ بنا اجمیر کا ہے کوئی زائر بنا اجمیر کا. مڈی دل کی طرح نکلے ہیں فقیر. ہاں ٹڈی دل کی طرح نکلے ہیں فقیر. ٹڈی دل کی طرح ہاں جی ٹڈی دل کی طرح نکلے ہیں فقیر. مارے مارے پھرتے ہیں حضرات و پیر. ہیں کہیں نوٹس بزرگی کا لگا ہے کہیں نوٹس بزرگی کا لگا. آؤ لوگو ہم پہ ہے فضل خدا. ہو ہمارے فضل میں تم بھی شریک. ہم تمہیں دیں فیض تم دو ہم کو بھیک. تھوڑی پرانی اردو ہے نا تو وہ جوڑ کے لفظ لکھ دیتے تھے. تھوڑی پڑھنے میں عام بندے کو دقت ہوتی ہے پر میں بھی چلو اوکے سوکے ہو کے پڑھ ہی جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہو ہمارے فضل میں تم بھی شریک. ہم تمہیں دیں فیض تم دو ہم کو بھیک. مال و دولت اور بیٹے پاؤ گے گھر بجا خدمت ہماری لاؤ گے. تم پھلو پھولو گے دشمن ہوں گے خوار. تم پہ رحمت ان پہ ہوگی حق کی مار. مال جو دے وہ مرید خاص ہے. مال جو دے وہ مرید خاص ہے. اب یہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے. اس کو میں تھوڑا بڑا کروں کہ یہ اسکرین بڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں مزید. مال کی بات آتی ہے تو اس کو تھوڑا بڑا کر دیا کریں کیونکہ مال جو ہے وہ ہاں نہیں اس کو تو ضرور بڑا کریں گے. اس کو تو بڑا کر کے دکھائیں. بڑا کریں مال بڑا کریں. دیکھو جی مال جو دے. ایک تو یہ اوپر سے جو اشتہار وغیرہ آ رہے ہیں نا. ہاں اب نظر آ گئے. مال جو دے وہ مرید خاص ہے اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے. یہ جو شیخ بٹالوی نے مال جو دے وہ مرید خاص ہے اس کے اوپر ایک نمبر لگایا ہوا ہے نمبر 1. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت شیخ بٹالوی نے کہاں لکھی ہوئی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سائڈ پہ نا حاشیے میں وہ لکھی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس سے مراد کون ہے. یہ لکھا ہوا ہے سائڈ پہ یہاں پر. جیسے حکیم نور دین جن کے اخلاص کی قادیانی نے جا بجا اس وجہ سے تعریف کی ہے. یہ حاشیے میں ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے حکیم نور دین جن کے اخلاص کی قادیانی نے جا بجا اسی وجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ بہت روپیہ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. ڈنڈے والے کاف سے قادیانی لکھا ہوا ہے. ہاں اب تو یہ پرانی بات ہے. کاف سے اب وہ پاسا پلٹ گیا نا. یہ جب کاف سے قادیانی لکھتے تھے نا کاف کینچی والے سے تب میر ناصر نواب کاف کتے والے سے لکھتا تھا. اب شیخ بٹالوی کاف کتے والے سے لکھنے لگے وہ کاف کینچی والے سے الٹ ہو گیا نا کام. گل سمجھو. اب یہ 93-94 کی بات ہے جب یہ رسالہ چھپا ہے نا. یہ 1893-94 کا رسالہ ہے. مال جو دے وہ مرید خاص ہے اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے. جو نہ دے کچھ مال وہ کیسا مرید شمر اس کو جان لو یا ہے یزید. میں بھی یہ کہنے لگا تھا جو نہ دے مال وہ کیسا مرید وہ ہے اس دور کا پکا یزید. پکا یزید. شمر اس کو جان لو یا ہے یزید. یا انہوں شمر آکھو یا یزید آکھو جڑا مال نہیں دیندہ. یزید ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی کسی کو گالی دینی ہو تو بندہ اس کو کہتا ہے تو یہودا اسکریوتی ہے. ہاں جی یزید ٹھیک ہے. اچھا سمر والا ٹھیک ہے. سمر والا ٹھیک ہے. منو پسند ہے. اگے سبابا کے بہت ہے. نہیں وہ اگلی سنانا ہے وہ جدے وچ کتاب دا ذکر کردا تصنیف دے بہانے لوکاں کو پیسے لٹدے نے. اگلی سنانا ہے وہ جدے وچ کتاب دا ذکر کردا تصنیف دے بہانے لوکاں کو پیسے لٹدے نے پیشگی پیسے لیندے نے. کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا اگر کسی نے کال ڈالی ہے تو میں وہ کیونکہ اسٹوڈیو کل آن کیا تو آج ہی آن کیا. ابھی نا اس کی 100%
अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहरहाल नीचे बैठ के सुने, रिकॉर्डिंग करें, ये काम आएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, वो कहते हैं, है मुरीदी वास्ते पैसों के अब, हाय दुनिया में पड़ा है ये गजब, हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश। और ले सारे फजल ले ले ये लाश। अच्छा, इसका भी उन्होंने ना साइड पे वजाहत की हुई है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। इसके नंबर 2 गए, हर घड़ी है मालदारों की तलाश के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, और नंबर 2 को उन्होंने बताया है कि देखो फतह इस्लाम सफ़ा नंबर 47 से सफ़ा नंबर 51 तक, जिसमें अशात कुतुब के बहाने लोगों से रुपया मांगा गया है। जोधर भट्टी हाशिया राय कर रहा है। तुसी भी उत्ते चढ़ आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਜੱਗੇ? ਇਹ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ नहीं सुनी। अच्छा, कहते ने हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश, कोई मिल जाए जो दौलत का सबब, एक दम में हूं वलद और पाक सबब, पाक सब, एक दम में हूं। ये कोई लफ्ज है वलदर या दिलदर, सब पाक सब, ये वाजे नहीं है ये, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो दौलत के दलीदर दिलदर हो सकता है, दिलिदर तो नहीं हो सकता, दिलदर हो सकता है। दलीदर पाक साहब सारे दलीदर। अच्छा 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 अच्छा, यूसुफी साहब आप चुप चुप के बंदे होते सुन रहे, चलो ठीक है। एक दम में हूं दिलदर पाक सब, कर्ज से एक दफा हो जाए नजात, गो मिले सदका को मिल जाए ज़कात, हो यतीमों ही का या रांडों का हो, रंडियों का माल या भांडों का हो, कुछ नहीं तफ्तीश से उनको गरज, हिर्स का है इस कदर इनको मरज, आजकल मक्का और ऐसे पीर हैं उनके हालो काल बेतासीर हैं, कुछ न सोहबत में उतरने, कुछ न सोहबत में असरने, बात में डालते हैं हमको वो आफात में। रह गई दुनिया में अब जाहिर परस्त, रह गए दुनिया में अब जाहिर परस्त, दिन बदन है दिन बदिन है दीन में हम लोग पस्त, और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार। बल्ले मीर नासर नवाब निकले हैं भाई, पूरे नवाब निकले हैं जी। कह रहे हैं और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार, यही लोगों ने किया है रोजगार। हुजूर आवाज सही तरह नहीं आ रही, कीमत लेते हैं वो, हुजूर आवाज से कुछ टीवी में आवाज नहीं आ रही सही तरह से। म्यूट करो तो पीछे करके सुनाओ, जिससे गल सुनना आ रही। हाँ जी, नजर लेते हैं वो, खल्क को इस तरह दम देते हैं वो, बाज खा जाते हैं कीमत सब की सब, इस तरह का पड़ गया यारो गजब, कीमतें खाकर नहीं लेते डकार, जैसे आता था कहीं उनका उधार, जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आजार है। अबू बकर मीर भाई रुको, सारे रुको आखिरी 1 मिनट दी दोबारा प्ले करके बस सुना दो तो अबू बकर मीर भाई रुको आखिरी 1 मिनट दी दोबारा प्ले करके बस सुना दो तो बाद खत्म कर दो। 1 मिनट दी आखिरी। अच्छा 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 अच्छा, यूसुफी साहब आप चुप चुप के बंदे होते सुन रहे, चलो ठीक है।
एक दम में हूँ दिलदर पाक सब। कर्ज से एक दफा हो जाए नजात, गो मिले सदका को मिल जाए ज़कात। हो यतीमों ही का या रांडों का हो, रंडियों का माल या भांडों का हो, कुछ नहीं तफ्तीश से उनको गरज, हिर्स का है इस कदर इनको मरज। आजकल मक्का और ऐसे पीर हैं, उनके हालो काल बेतासीर हैं। कुछ न सोहबत में उतरने, कुछ न सोहबत में असरने, बात में डालते हैं हमको वो आफात में। रह गई दुनिया में अब जाहिर परस्त, रह गए दुनिया में अब जाहिर परस्त। दिन बदन है, दिन बदिन है दीन में हम लोग पस्त। और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार। बल्ले मीर नासर नवाब, नवाब निकले हैं भाई, पूरे देड़े का नवाब निकले जी। कहता है और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार, यही लोगों ने किया है रोजगार। पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो, ए जी पेशगी कीमत ली सी ना बराई नेम दी चौहान साहब जी जी, पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो, खल्क को इस तरह दम देते हैं वो। बाज खा जाते हैं कीमत सब की सब, इस तरह का पड़ गया यारो गजब। कीमतें खाकर नहीं लेते डकार, जैसे आता था कहीं उनका उधार। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है। बदगुमानी का उसे आजार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। सारे बदबख्तों का वो सरदार है। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है। बदगुमानी का उसे आजार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। यानी जो पैसे सब बदबख्तों का सरदार है। कमाल है। व्हाट्सएप जो थले सुनते नहीं पए क्योंकि मैंने नजर नहीं आ रहा, मैं ड्राइव कर रहा ते शाम होगी, धुंध भी बड़ी पई है। मैं पे कहना कि अगर व्हाट्सएप थले सुनते पे हो ना ते ये दसो जी मीर नासर नवाब ने क्यों एडा वड्डा इल्जाम लाया है, मक्कार ते फरेबी आख्या है ते किताब दे नां ते पैसे खा के डकार मार छड़िया मिर्जा साहब ने। तो एडा वड्डा इल्जाम क्यों पै लांदा है? रसाला शाह तो सुन्ना दी 13वीं जिल्द दे स्कैन चाहिए तो मेरे को लै लो, PDF चाहिए तो अबू बकर मीर भाई को लै लो, ते और कोई साडे लै खिदमत है तो दसो कि वो क्यों मीर नासर नवाब ने चीखा मार मार के आख्या कि इस बंदे ने लोगों का माल खा के डकार भी नहीं लिया, पेशगी कीमत लै लईए ते जेड़ा पैसे वापस मंगे वो बेईमान ते फलाना ढिंगा खवाए दे कोलों। ये क्यों इन्ना मातम किया जी इस मसनवी दे विच? मीर नासर नवाब ने क्यों इन्ना मातम किया मिर्जा साहब दा? भट्ट साहब दिया जो जवाब जरा गौर फिक्र करके तसल्ली करके, हवाले तक तुम कई लै गए वापस भी लै गए। नज़ीर भाई इतनी बड़ी खिदमत की है, और क्या खिदमत चाहिए उनको? ये खिदमत की है इन्होंने। सब बदबख्तों का सरदार है पीर साहब। ये अमर भाई ने बड़े जोर दे के कहा है, सब बदबख्तों का सरदार है। कमाल हो गया जैसा यकीन। ये नज़म लिखने वाला इसका सुसर है, यानी उस वक्त रिश्ता नहीं ना हुआ था, रिश्ता होने से पहले, बाद में तो सुसर बन गया ना। तो पहले उसने नज़म जब लिखी है तो उस वक्त वो बड़ा बदजन था कि ये किस तरह का बंदा है, लोगों का माल बटोरा। लेकिन बाद में खुद उसको भी माल की ज़रूरत थी, तो उसने सोचा ये तो अच्छी भली दुकान चल पड़ी है, तो मैं अगर बेटी दे दूंगा तो यहाँ पर तो हलवे मांडे चल रहे हैं, दुकान चल पड़ी है, लोग मुरीद आते हैं, पैसा देते हैं, चले जाते हैं, तो देखें रोज़ पकती हैं, मुरीदों का आना जाना है, तो उसने बेटी दे दी। फिर बाद में अपने नवासे को खलीफा शलीफा, वो चौहान साहब से पूरी तफसील सुन लें कि वो बंदा जो था वो इसी तरह का था मीर नासर नवाब। बहरहाल अगर उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो भी ये इनकी मर्जी है, ये कह सकते हैं भट्ट साहब आके कि मीर नासर नवाब एक झूठा इंसान था, उसने झूठे इल्ज़ाम हमारे मसीह मौद पे लगाए। सच्चे हैं तो भी, झूठे हैं तो भी, इनको देख लें और जवाब दें। ये 1880-82 का इल्ज़ाम है, जो किताब के पैसे भी यही हम इल्ज़ाम लगाते हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम। आमिर भाई एक छोटी सी बात की इजाजत देते हैं प्लीज, जी आपकी जी करें मेहरबानी होगी। करें करें करें। मुझे भी